Good morning, everyone. How are you? I hope everyone is healthy at home. So, class, today we are going to complete topic 4, which is coming under part B, digital documentation. So, the topic is table of content. So, let's see what are the things we need to do it. That is create and customize table of content, where we need to complete these three things: create table of content, define a hierarchy of headings, customize a table of content, apply character style, maintain a table of contents. And class, first before proceeding we need to understand what is table of content. सो क्लास, जब भी किसी बुक में पहला पेज आपका जो इंडेक्स का होता है वो इंडेक्स क्या हेल्प करता है टू सर्च द चैप्टर ऑन विच पेज नंबर इट इज़ लाइंग. तो इट मेक्स वेरी easier फॉर अस. इट बिकम बेसिकली सर्चिंग बिकम्स फास्टर. सो क्लास, इंडेक्स बनाने के प्रोसेस को ही हम टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं. ठीक है. सो इफ यू वांट टू क्रिएट एन इंडेक्स ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द ओपन ऑफिस राइटर, दैट इज अ टेबल ऑफ कंटेंट. यू कैन मेक इंडेक्स फॉर अ बुक, नॉवल, लीगल डॉक्यूमेंट्स. इट कुड बी एनीथिंग. इंडेक्स तो किसी भी चीज़ का बनाया जा सकता है. सिर्फ बेनिफिट क्या होता है, सर्चिंग बिकम्स फास्टर. So it works on the concepts of heading, which comes in styles. We will see how it helps to search the content faster. So class, let's proceed. So I am going to complete one by one, but before I am going to start, I am starting with defining hierarchy of heading. So for this I have created a file, right? So this is a file where I have written every step. So table of content, define a hierarchy of content, that I have written. So first the main step is define a hierarchy of content. So here I am opening open office writer. Click here. So class, I am going to first create a headings. Imagine I am writing a book. तो बुक के अंदर मैंने ना चैप्टर वगैरह सब लिख लिए हैं. कौन सा चैप्टर 1 है, कौन सा चैप्टर 2 है, दैट आई हैव ऑलरेडी रिटर्न, बट इंडेक्स नहीं बनाया. तो इंडेक्स के लिए वी हैव लीव द पेज 1. सो आई हैव लेफ्ट द पेज 1. दिस इज़ माई पेज 2. इमेजिन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने लिखा पार्ट ए. ठीक है. हमने लिखा पार्ट ए का यूनिट 1. ठीक है. एंड यूनिट 1 इज़ ऑन लाइक दिस, एंड वेयर इट इज़ सेशन 1. ठीक है. दैट आई हैव रिटर्न. अब मैं क्लास इसको हेडिंग दूंगी. हेडिंग के लिए वैसे तो हेडिंग इज कमिंग ऑटोमेटिकली हेयर, अदरवाइज यू कैन गो टू फॉर्मेट, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग. Here please choose headings, which is by default from 1 to 10. As you can see that 1, 10 to, if you'll count, it is 1 to 10. So here I am giving heading 1. ठीक है. So here it is, I am giving heading 1, right? I am choosing second one. Here I am giving heading 2. And here I am choosing 3, third one. Here I am giving heading 3. ठीक है. इसके बाद imagine मैंने ये चैप्टर लिखे हुए हैं. Imagine this is a chapter, and along with the question and answers. Imagine. ठीक है. सो मैंने ये कॉपी किया. ये तो चैप्टर 1 के लिए था कॉपी. नाउ आई एम गोइंग टू अनदर पेज. ठीक है. सो दैट इज माई पेज 3, जिसके अंदर दिस वुड बी चेंज. ठीक है. इमेजिन इसमें भी कुछ अपना कंटेंट है. Now I am moving to another page, page 4, and here I am taking unit 3. So class, in short, as per the pages मैंने कुछ chapters बना लिए. ठीक है. चैप्टर 1, यूनिट 1 का सेशन 1, यूनिट 2 का सेशन 1, यूनिट 3 का सेशन 1. ठीक है. सो क्लास, आपने एक चीज़ नोटिस की, मैंने पार्ट ए जो पहली लेवल का था उसको हेडिंग दी. उसके अंडर यूनिट 2 आ रहा है तो उसकी लेवल मैंने 2 रखा, और सेशन 1 यूनिट 1 के अंदर आ रहा है इसलिए मैंने उसकी हेडिंग 3 लिखी. सो क्लास, दिस इज हायरार्की ऑफ हेडिंग. हायरार्की ऑफ हेडिंग से ही डिसाइड होता है कि कौन सा टॉपिक किसके अंडर आएगा. ओके. सो क्लास, पार्ट ए इज हेडिंग 1, यूनिट 1 इज होल्डिंग हेडिंग 2, तो यूनिट 1 विल कम इनसाइड पार्ट ए. सेशन 1 इज होल्डिंग हेडिंग 3, so session 1 will come under unit A. ठीक है. unit 1. So let's see how to make the index. So how to create an index class? Just keep the cursor, go to insert, go to index and tables, again go to index and tables. One box will appear.
When this voxel is appear, this box is actually responsible for doing styling, making hyperlinks, changing the background color, making the columns. We will see one by one. ठीक है, तो पहले आप इंडेक्स एंड टेबल पे जाएंगे. ये आपका प्रीव्यू है. यहाँ पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट में आप दे सकते हैं. तो हेयर आई एम जस्ट राइटिंग माय बुक नेम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, यू कैन चेंज इट ऑल्सो. वॉट एवर द आई एम मेकिंग चेंजेस, इट इज़ विजिबल क्लियरली हेयर ऑल्सो. Type would be same. This has to be checked. ठीक है, what is the meaning? Protect against manual changes. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इंडेक्स अगर आपका बन गया है, कोई इसमें चेंजेस ना कर पाए, तो उसके लिए आप ये चेक करेंगे. वी विल सी. क्रिएट फ्रॉम क्लास, ये 3 ऑप्शंस है. आउटलाइन, एडिशनल स्टाइल, इंडेक्स मार्क्स. ठीक है, आउटलाइन इंडेक्स इज अ पार्ट ऑफ दिस कंटेंट ओनली. एडिशनल स्टाइल्स अगर आपके पास हैं तो आपको उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा. अगर आपने कहीं और बना रखे हैं, जैसे यहाँ पर ये कुछ है, जैसे इंडेक्स, लिस्ट, टेस्ट बॉडीज, ये आप एक्सटेंड कर सकते हैं, उठा सकते हैं. यू कैन रिट्रीव इट. ठीक है, अदरवाइज यू कैन मेक इट अनचेक. नाउ क्लिक ऑन ओके. सो व्हेन यू क्लिक ऑन ओके, आर यू एबल टू सी ऑटोमेटिकली इंडेक्स हैज बीन क्रिएटेड वेयर द पेज नंबर्स आर ऑल्सो कमिंग, राइट. दिस इज द बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग एन इंडेक्स. कंटेंट पहले लिखा है, इंडेक्स हम बाद में बना रहे हैं. कितना ईजी है. देखो, ये हेडिंग 1 था, ये हेडिंग 2 था, ये हेडिंग 3. कैन यू सी द स्टेयर्स लेवल्स? दिस इज द हायरार्की ऑफ हेडिंग. ठीक है क्लास, अभी देखिए यूनिट 1 इज कमिंग ऑन पेज नंबर 2, है ना. ये देखिए प्लीज, ये देखो, है ना. इमेजिन इट इज गोइंग टू पेज नंबर 3. एक इसमें इंसर्ट हो गया पेज नंबर 3 में, आप देख सकते हैं, है ना. नेक्स्ट वाला किस में चला जाएगा? नेक्स्ट पेज पे. नेक्स्ट वाला नेक्स्ट पेज पे. सो क्लास, मेरा जो यूनिट 1 है, नाउ इट इज ऑन विच पेज नंबर? पेज नंबर 3. ठीक है, ओके, इट इज ऑन पेज नंबर 3. सो आई थिंक पेज नंबर 4, आई हैव गिवन 2 पेज गैप्स. दिस इज पेज नंबर 1, 2, 3, 4. ठीक है, तो यूनिट 1 कौन से पेज नंबर पे? 4 पे. ये 3 है, ये 2 है, एंड दिस इज द 1 वेयर आई हैव क्रिएटेड इंडेक्स. सो लेकिन इस पे तो चैप्टर 1 पे 2 आ रहा है. सो क्लास, व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, जब गलती से पेज नंबर चैप्टर के चेंज हो जाए लेकिन इंडेक्स में कुछ भी मॉडिफिकेशन ना हो, तो उसके लिए आप राइट क्लिक करके किस पे क्लिक कर सकते हैं? अपडेट इंडेक्स एंड टेबल. देख रहे हैं ऑटोमेटिकली सब चेंज हो गया. ठीक है, ओके. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, manual changes. Are you able to see? I'm clicking a backspace, but nothing. I'm able to make some changes here. If you want to make some changes, right click, click on edit index and table. One again the same box will clear. This इधर मैं changes क्यों नहीं कर पा रही थी? Because ये मैंने check कर रखा था. इसका मतलब protect against manual changes. You can make it uncheck. When you make it uncheck, you can make any kind of changes. Are you able to see now? ठीक है. So it is for our security. So if you want to make some changes, once you are done with the index, right click index table and edit index and table. Again the same box will appear. Click here. Is that okay class? That topic we have done the first one. Create table where define hierarchy and create table of content. Now coming up to customizing a table of content, जिसमें मैं आपको apply character styles भी बता दूंगी. ठीक है, let's start. सो सबसे पहले हम ईजीएस्ट करते हैं. राइट क्लिक, गो टू एडिट इंडेक्स एंड टेबल. द बॉक्स विल अपीयर. सबसे पहले कम टू द ईजीएस्ट वन. इफ़ यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड, सो यू कैन चेंज इट लाइक दिस. ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऑलवेज कम्स इन अ ग्रे कलर. सो इफ यू वांट टू मेक इट लाइक द इंडेक्स इज कमिंग इन अ 1 column, you can change it to this. You can make it 2 columns also. ठीक है, so it will come like this. It depends. सी, जब पेजेस ज़्यादा हों तो सिंग 1 column में रखो. अगर पेजेस कम हो, सारा इंडेक्स एक ही पेज पे लेके आना है जैसे भी करके, तो यू कैन चूज फॉर द 2 column. राइट क्लिक, एडिट, राइट. अगेन द सेम बॉक्स विल अपीयर. यू कैन, आई एम जस्ट मेकिंग अ बैकग्राउंड लाइक नो फिल. ठीक है, एंड कॉलम्स आई एम मेकिंग इट व्हाट? 1. okay, click on ok, it becomes the normal one. Now again going to right click, edit index and table. One box will appear where I am going to show you about the styles. क्लास, अगर आपको स्टाइल चेंज करना है तो मैंने लिया है यहाँ पर टाइटल, कंटेंट हेडिंग विच इज़ माई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी.
सो हमने यहाँ पर लिया कैप्शन. आई कैन क्लिक ऑन हेडिंग, edit, and I can just change whatever I want to change. So I'm making 24 style, bold, this I'm changing. font effect अगर आपको कुछ देने हैं तो आप वो देख सकते हैं, जैसे blinking I'm choosing. click on OK, click on OK. ठीक है, so that would be applied over this. Okay, again I'm doing it. As blinking is not happening, again click here, right click, edit index. I'm choosing content 1. ठीक है, if it is not applying on the title, it's fine. I'm choosing on content 1. Click on content 1 here. Click on edit here. ठीक है, I'm choosing like blinking here. ठीक है, I'm choosing blinking. Can you see? ठीक है ना? Okay. And font I'm making like, I'm just increasing the font size from here. Okay and okay. Are you able to see now? ठीक है, it is blinking or not? ठीक है, these are my styles, है ना. तो स्टाइल से कितनी अच्छी वैरायटी आ जाती है ना आपके पास. बट हम कभी ऐसे इंडेक्स को ब्लिंक नहीं करवाते. तो अगेन आई एम जस्ट गोइंग ऑन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू दैट्स इट. सो इफ यू डू नॉट वांट इट, please click on content 1. Can you see the preview is coming up here also? Click on edit. So class, whatever the changes I have made it, please make it normal. ठीक है ना. click on the outline effect only, या shadow, in fact why to choose, just leave it. ठीक है ना. I'm just making a normal one, and here from here I'm just making it a point normal. So this is what I have done now. ठीक है. अगर आपको यूनिट 1 के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है, यूनिट 1 यूनिट 2 मतलब उसके मैचिंग का, तो अगेन गो देयर, अगेन मूव टू द स्टाइल्स ऑप्शन. ठीक है, मूव टू द स्टाइल्स ऑप्शन, क्लिक ऑन द कंटेंट 2, and from here content 2, I am just not doing blinking or something over here. I am just increasing the point so that you can see किसके ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है. ठीक है ना. ओके, सो दैट इज व्हाट. पहले पार्ट ए पे हो रहा था, अब यूनिट 2 पे हो रहा है. इफ यू वांटेड अगेन मेक इट नॉर्मल, यू कैन डू Ctrl+Z. Ctrl+Z इज नॉट वर्किंग. कोई बात नहीं, हम एडिट इंडेक्स पे इस पे कर लेते हैं. स्टाइल में चीज़ें फ्रीज हो जाती है ना, दैट्स व्हाई मे बी Ctrl+Z इज नॉट वर्किंग. Click here, click on edit. Again I'm just decreasing the point because I have increased only the point just to show you, that's it. Click on OK, click on OK. I hope styling is very much clear. But class, with the styling, this is apply styling we have done. I just want to show you maintain table of content. What is that? ठीक है, maintain table of content जब भी हम बात करते हैं वो बात होती है जब भी हम राइट क्लिक करते हैं. So जब भी हम टेबल ऑफ कंटेंट पे आई एम डूइंग द राइट क्लिक, आई एम गेटिंग द 3 ऑप्शन, अपडेट, एडिट एंड डिलीट. अपडेट आई हैव शोन यू, एडिट आई हैव शोन यू, द नेक्स्ट इज व्हाट, डिलीट. इफ यू वांट टू डिलीट, यू कैन डिलीट इट इजीली. ठीक है, दैट इज लाइक हाउ यू कैन मेंटेन द टेबल ऑफ कंटेंट. सो मेंटेनिंग इज इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन ओनली. ठीक है ना. जैसे इंसर्शन को आप एडिटिंग भी कहते हैं, एडिटिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग. सो यू वांट टू मेक इट अगेन, सो गो टू this, again the table of content will appear like this. ठीक है. Okay, now class, I want to tell you that how to do the changes as per the making hyperlinks. So for making hyperlinks we have entries. ठीक है, ये क्लास ये हेडिंग्स ही हैं आपकी जो 1 to 10 ही होती है. क्लास, दिस इज अ स्ट्रक्चर. दिस एज यू कैन सी इट इज़ अ चैप्टर नंबर. दिस इज अ एंट्री. चैप्टर के अंदर जो सब टॉपिक होता है ना उसे एंट्री कहते हैं. ये टैब है, हम टैब यूज़ करते हैं ना, टैब उसको स्टॉप करने के लिए. एंड दिस इज फॉर द पेज नंबर. सो क्लास, अगर आपको कोई हेडिंग 2 पे यहाँ पर भी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो यू कैन गो देयर. ठीक है, आप यहाँ पर कैप्शन करेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं. क्लिक हेयर, गो टू एडिट. ठीक है, and in the edit you can change the font size. Here I'm not just making it any blinking, you know how to blink it, so I'm just changing the size. Okay, okay. ठीक है, it is not reflecting. Again I'm doing it, sometimes it happens. Okay, again click on edit index. ठीक है, you can choose the edit to chapter E. ठीक है ना. हेडिंग 2 हमारी क्या है, नेक्स्ट वाली. ठीक है ना. एंड दैट यूनिट 1, यूनिट पार्ट ए पे तो हेडिंग 1 थी, हेडिंग 2 किस पे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3. ई पे गए, यहाँ पर हमने चूज़ कर लिया कैप्शन करेक्टर्स.
ठीक है, नाउ इट वुड बी अप्लाइड क्लास, आर यू एबल टू सी दैट? ठीक है ना, ओके ओके, ठीक है, नाउ इट इज कमिंग। सो क्लास स्टाइलिंग के आपके पास दो ऑप्शंस हैं। सो दो ऑप्शंस आप कोई भी यूज कर सकते हैं, वेदर इट यू कैन यूज स्टाइल्स और वेदर यू कैन गो फॉर द ई हैश। आई हैश स्पेशली इसका यूज होता है हाइपरलिंक्स बनाने का। फर्स्ट आई एम जस्ट मेक इट नॉर्मल, सो अगेन आई एम गोइंग देयर, आई एम क्लिकिंग ऑन ई, कैप्शन करेक्टर्स की एडिटिंग पे मैं अगेन जाऊंगी। E is for the headings, sub headings, ठीक है ना। So I'm just making it 12 points so that it becomes normal. As you can see, it is all normal now. Now I want to make unit 1, unit 2, unit 3 as a hyperlink. What is the meaning of hyperlink? देखो गूगल पे हम कुछ भी सर्च करते हैं तो ब्लू कलर का अंडरलाइन में जो आता है ना, उसे हम बोलते हैं हाइपरलिंक। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ हाइपरलिंक? कि मैं कोई उस वेबसाइट पर अगर क्लिक करती हूँ, उस लिंक पे क्लिक करती हूँ ना, तो उससे रिलेटेड वेबसाइट ओपन हो जाती है। सिमिलरली मैं चाहती हूँ यूनिट 1 पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं यूनिट 1 पेज नंबर 4 पे चली जाऊँ, यूनिट 2 पे क्लिक करूँ तो पेज नंबर 5 पे चली जाऊँ, यूनिट 3 पे क्लिक करूँ तो पेज नंबर 6 पे चली जाऊँ। ठीक है, तो उसके लिए क्लास यू नीड टू सिलेक्ट 2 ओवर हेयर। इससे पहले आपको कर्सर रखना है, हाइपरलिंक पे क्लिक करना है। ls इज द स्टार्टिंग ऑफ माई, एज यू कैन सी हाइपरलिंक हैज बीन स्टार्टेड। आफ्टर दैट ई के बाद कर्सर रखना है, अगेन हाइपरलिंक पे क्लिक करना है, एंड LE स्टैंड्स फॉर एंडिंग ऑफ दैट। ठीक है, एंड आफ्टर दैट प्लीज क्लिक ऑन ओके। एज यू कैन सी ऑल इट इज कमिंग इन अ ब्लू कलर, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। अब हाइपरलिंक का मतलब क्या है, देखो जरा, अभी मैं फर्स्ट पेज पे हूँ ना, मैं यहाँ गई, ये बोल रहा है कि अगर आपको हाइपरलिंक यूज करना है तो यू नीड टू प्रेस कंट्रोल फ्रॉम द कीबोर्ड। देखो मैंने इस पे गया, मैं ऑटोमेटिकली कौन से पेज पे आ गई, पेज नंबर 3, पेज नंबर 6 जिस पे यूनिट 3 था। ठीक है ना, तो हो गई ना सर्चिंग और भी फास्टर, इसे हम कहते हैं ट्रैवलिंग। अब देखो यूनिट 1 मुझे जाना है पेज नंबर 4 पे, मैंने कंट्रोल प्रेस किया, इस पर क्लिक किया, मैं ऑटोमेटिकली यूनिट 1 पे पहुंच गई, पेज नंबर 4 पे पहुंच गई। Is that okay, class? So class, we have covered all the topics. Please have a look. We have done maintain table of content, how to do right click, apply character styles, customize the table of content, bold, italic, creating a hyperlink, and before that we have seen how to do the hierarchy of headings, and after that how to create a table of content. Okay, these all things we have done it. Okay, class? Thank you. That's it for the day.